कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोगों को सब जानते हैं शेड्यूल कास्ट समाज के लिए ये कमीशन गठित हुआ। महामहिम राष्ट्रपति ने नियोग पत्र दिया है देश भर में अनुसूचित जाति वर्गों व शेड्यूल कास्ट समाज के ऊपर किसी भी जगह में कोई भी कोने में हिंदी में करो वो ट्रांसलेट தமிழ் சேனல் லைவ் போயிட்டு இருக்கு தமிழ் சேனல் லைவ் போயிட்டு இருக்கு தமிழ் में சொல்றோம் சார் லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு National Commission for Scheduled Caste, Government of India. It is for scheduled caste community, for justice. Any incident throughout India, when only one single paper petition come in the complainer, and commission can take over the case and spot visits for rape and murder case. Today, I visited two spots in Tamil Nadu, Chennai. One is Egmore police station. There is one minor boys crucially beaten by the police and killed him. Now, he was a scheduled caste family. At first, police want to suppress the matter that he is not a scheduled caste family. I told the police commissioner when I start from Delhi, I kept my certificate in my pocket and showing him, this is your certificate. Why you suppress this matter? It is seriously atrocity case, and you file the case and FIR these angles, and this case will be investigated through a DSP, rank officer. IO will be changed. Police, and that after I visit one serious matter, the rape case, IIT Chennai visited that spot, and that girl also with me, and she telling me where is the spot of the rape place in the lab of IIT. After then, I meeting with the administration of IIT Chennai and discuss all the matter, all the angle. They want to set everything of the case. I collect the all case history, and I am going to the Delhi, and total legal matters I justifies our committee, and after then I will deliver our observation throughout the commission. But at first, when I asking them, when one lady, one girl shouting and telling me, I have several times raped, I telling them, what is your views? When one एक लड़की जब बोल रहा है मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ, मेरे को रेप किया, आप लोगों का घर में माँ बहन है, आप लोग क्या किया है? इतना दिन में जब FIR किया है पुलिस के, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया? उनको बेल करने का मौका आप लोगों ने दिया है। पुलिस का बहुत बड़ा गलती है। Third, student, now the bail of the Honorable Calcutta High Court. So that is a sub judice case for the bail, but inquiry and procedure will be going to the observation by the National Commission. That is only for bail angle. Immediately I observed the case, and commission taken action to the administration of IIT Chennai, and decision to him immediately
rusticate the student, and when tomorrow I will go to the Delhi and you report to me the college is rusticate the student. It is past our observation. After that time, कौन प्रोफेसर कौन लोग इनके साथ में जड़ित है, लड़की ने हमको बताया। उसी केस में हम लोग देख रहे हैं। वो केस जस्टिफाई करने के बाद हम लोग को कमीशन से ऑब्जर्वेशन आएगा और 2 केस लिए जो केस के लिए हम लोग आया है, मैं समाज के लिए आप लोगों का माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ जो इस टाइप का घटना 2021 सेंचुरी में ये होना नहीं चाहिए था। वो जो लड़का को मर्डर कर दिया था पुलिस ने, वो लड़का एक गरीब परिवार का था। वो केस का मोटिव मैंने समझ लिया है। पुलिस के सोचा इसका कोई बोलने वाला कोई नहीं है, वो गरीब है, अनुसूचित जाति परिवार का है, ये सब पता चल गया पुलिस को। और उन्होंने मेरे को बताया उनका अगेंस्ट में बहुत सारे केस भी पहले था, इसलिए उनको किसी को मारने के लिए जा रहा था। पुलिस साइड में जो दैट लड़का वो किसी को किल करने के लिए जो नाइफ मिला, छुरी मिला है उनसे। ये मैंने बोला पुलिस को आपको कैसे समझ लिया, आपको कैसे समझ लिया जो परिकल्पना, आप क्या एस्ट्रोलॉजर है क्या? किसी के हाथ में एक नाइफ देख लिया और उनको मर्डर करने के लिए जा रहे, आपका तमिलनाडु पुलिस क्या एस्ट्रोलॉजर बन गया क्या? मैंने उनको पूछा है। ये सब किसी को छुपाने का मत कीजिए, किसी को बचाने का कोशिश मत कीजिए। उन्होंने बोला नहीं सर, 3 लोगों को हम लोग सस्पेंड कर दिया, जो पुलिस ऑफिसर उनको लेके आया था रात में। और मैंने बोला है 3 लोगों को आपने सस्पेंड किया, जो जिस एरिया में हुआ जिसका जिम्मेदार है पुलिस ऑफिसर, उसको क्या किया है? वो अभी भी उस थाना में है। मैं अभी इसका भी ऑब्जर्वेशन भेजेंगे। ये इमीडिएटली जो एसआई है उधर का, उसको भी इमीडिएट सस्पेंड कीजिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है, उसका थाना में हुआ। दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड दैट पुलिस स्टेशन, तो पुलिस इंचार्ज इस पे बच नहीं सकता है। वो 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, उनको तो जिम्मेदारी है, थाना में हुआ घटना। वो भी हम लोग अभी बता के जा रहे हैं इनको। ये केस भी सीरियसली कमीशन देखेगा और उसके बाद देखना चाहिए, हम लोग भी देखेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहा है, उसके बाद कमीशन का ऑब्जर्वेशन हम लोग भेजेंगे। सर ऑपरेशन कैसा है तमिलनाडु गवर्नमेंट और पुलिस का कोऑपरेशन? हाउ इज द कोऑपरेशन? देखिए, पुलिस का कोऑपरेशन से मेरा साथ कमीशन के साथ उन लोग ऐसा कोई नॉन कोऑपरेशन नहीं किया है, अच्छा कोऑपरेशन किया है। क्योंकि मैं देखिए कोई दुश्मन तो हम नहीं है ना, मैं तो यही उनको सोचा किसी गवर्नमेंट का काम है अच्छा के लिए, अच्छाई के लिए। वही गवर्नमेंट का ये काम नहीं है जहाँ हम लोग कोई दूसरी को हम लोग उनको छुपाएंगे, इससे गवर्नमेंट का खराब हो जाता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको बचाने का क्या मतलब है? जो लीगल है लीगल एक्शन लीजिए, मैंने उनको सुझाव दिया है। वो लोग अभी मेरे साथ में ही है, सबके साथ बात हुआ, वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, पुलिस हमको एश्योर किया है। சார் அந்த இளைஞர் மரணம் தொடர்பா என்ன மாதிரியான ஆய்வுகளை செஞ்சீங்க நீங்க? सर अभी तो आईआईटी में होगा था ना इंक्वायरी के बाद में जो लड़की अभी कितना आपको बोला था, इसके बाद में ये आईआईटी इंस्टीट्यूशन तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में इतना तकलीफ एक लड़की को दे रहे तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या? ये लोगों का सोच का विषय है, इसमें सेंट्रल स्टेट इंटरनेशनल ये सब बात होने की कोई बात नहीं है। ये लोगों का सोच है, इसमें कोई सेंट्रल स्टेट का कोई बात नहीं है। एक बात सोच लीजिएगा, जिधर में एक घटना हुआ है, ये लोग तो बाहर से सप्लाई नहीं, इसी धरती में हुआ ना, इसी स्पॉट पे हुआ। जो जिस स्पॉट पे हो रहा है उसी जगह का लोगों का सोच क्या है, कोई भी जगह में घटना हो, लेकिन इसको सप्रेस करना नहीं चाहिए। मैं इंस्टीट्यूशन के जो अधिकारी लोग उनको वो बोल दिया है, ये जब घटना हुआ था, ये घटना आपको स्ट्रिक्टली आपको देखना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने मेरे को लगा है थोड़ा सा हल्का से लिया है
और घटना को डाइवर्ट करने का मूड में था। सर ये जो कस्टोडियल डेथ है उसमें क्या क्या विचार हुआ है आपको? पुलिस ऑफिसर के साथ जो बात किया आपने, उन लोगों से क्या मालूम पड़ा? जो फैमिली से आपने बात किया, उन लोगों से क्या मालूम पड़ा? देखिए अभी तो मैंने उनको उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, PO प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। उसमें इस परिवार का अभी कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, इमीडिएट मिल जाएगा। उनको सर्टिफिकेट शो किया है। पुलिस ने सबसे काम किया जो शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं, इसमें उन लोगों का स्टॉक था, लेकिन मैंने पहले से ही पूरा रिपोर्ट लेके उनको सर्टिफिकेट डायरेक्ट हाथ में पकड़ दिया, तो उसको जाने का कोई जगह नहीं। अभी उस परिवार को एट्रोसिटी लगने के बाद 4.25 लाख इमीडिएट उनको मिलेगा इस परिवार को। और जो अभी जेल में है, मैं इमीडिएट इधर से निकल के जेल में वो लड़का के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। अभी जाएंगे उसको जेल में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि किसी कारण से उनको जेल में भेज दिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके साथ में था। इसके बाद मेरा जस्टिफाई करने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला मैं जेल में जाकर उनसे मिलेंगे, जो बात करना चाहता है। किसी को अन्याय होना नहीं दूंगा। जब कमीशन में एक दृष्टि आ गया तो हम लोग से बात करने के बाद तो निर्णय आपको सब बताएंगे क्या करना चाहिए। सर ये जो कस्टोडियल डेथ के बाद जो पुलिस एक्शन था, आपने इन्वेस्टिगेट किया अभी, तो आपको क्या लग रहा है? इसमें कहीं ना कहीं पुलिस कल्प्रिट है? पुलिस ने कुछ कवर अप करने के लिए कुछ किया था? देखिए भाई भाई को बचाने की कोशिश करता है, ये सहज बात है कि पूछने का कोई नहीं है। अपना पुलिस लोग को बचाने का चेष्टा करेगा, लेकिन वो धारणा मैंने चेंज कर दिया। जो हायर अधिकारी लोग हैं उनको मैंने समझाया, अगर आप लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो सरकार को तरफ से आपको ये मैसेज देना चाहिए कि सरकार न्याय के लिए है, किसी को मरने के लिए नहीं है। आपको पुलिस को ये जिम्मेदारी नहीं है। अभी पुलिस को ये ब्रिटिश, मैंने ये भी बोला कि ये ब्रिटिश पीरियड का पुलिस नहीं है। पुलिस का डेफिनेशन आज चेंज हो गया। आज का दिन में पुलिस का बहुत सारा सोशल एक्शन में जाना चाहिए। एक लड़का को कोई नहीं है, वो घोड़ा चला के उनको खाना पीना चलाता है, उसका उनका अगेंस्ट के बहुत सारे केस था, पहले भी मर्डर केस था, ऐसे बोलने लगा। मर्डर केस था कि जो भी थे आप चार्ज करो, जेल में भेजो, उसको तो मारने का अधिकार आपको कोई नहीं दिया है ना। पुलिस आए इंस्पेक्टर 3-4 लोग इंस्पेक्टर पुलिस में जुड़ा हुआ है। अभी तीन पुलिस को अभी सस्पेंड किया है और एक्स्ट्रा रखे 3 इंस्पेक्टर आके इसमें जुड़ा हुआ है कि अभी इन्वेस्टिगेशन वो अभी CID ने इन्वेस्टिगेशन को जो इंचार्ज है उन्होंने मैंने बुलाया, उन्होंने सारे चीज हम लोग को देखा है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन पीरियड चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है अभी ऑब्जर्वेशन बाय द नेशनल कमीशन। सर पुलिस ने ये भी बताया है कि मतलब उनके पास चाकू था, गांजा था और मतलब उसके वापस अटैक करने का भी चांसेस था, तो वो अपने से जांच किया पुलिस के साथ। देखिए ये जांच पुलिस करेगा। पुलिस ने हम लोग को सफाई देने का कोशिश किया है। मैं एक ही एंगल से उनको बोला है कि किसी पास गांजा है, नाइफ है, सब कुछ हो भी सकता है, आपको ये देखना चाहिए। तो आपको क्या काम था ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ವುಗಳ ಸರ್ ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿಗೆ IIT-ಲಿಯೋ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕಾವಲು क्लियर ऑब्जर्वेशन है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन लगा कमीशन की तरफ से हम लोग को जो मिला है कि इसको ऊपर पहले तो देखिए, इसको PO एक्ट लगाने के लिए पुलिस देरी कर दिया। PO एक्ट लगाने तो DSP का किसी अधिकारी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें इसमें DSP लेवल से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, आज से शुरू हो गया। कमीशन आ गया, उसी IO चेंज होकर DSP लेवल का कई अधिकारी को दे दिया। तो अभी वो लोग जस्टिफाई करेंगे, वो CBI को केस दिया, CID को केस दिया है। अभी CID पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, वो मर्डर का क्या मोटिव है वो भी पता चलेगा, उसके बाद ही हम लोग बोल सकता है इसमें क्या हो सकता है। सर SCS जो कमीशन जो है, आपने दोनों केसेस की जांच की है, वो IIT वाला केस और ये कस्टोडियल डेथ वाला केस। क्या आपको ये जो पुलिस एक्शन जो है इन दोनों केसेस में, क्या आपको सेटिस्फाइड है आप? देखिए अभी तो इन्वेस्टिगेशन पीरियड में है, लेकिन पुलिस को जो करना चाहिए ये तो नहीं किया। पुलिस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अभी कमीशन आने के बाद उन लोग तो जो सीरियसली लिया केस, तो मेरे को लगता है इस परिवार को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ये तो हमारा कमीशन का ऑब्जर्वेशन होगा। ऑलरेडी PO एक्ट लग गया, उसी परिवार का कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। अभी वो लड़का के साथ बात करने के बाद क्या क्या हुआ और उसमें क्या एक्चुअल घटना हुआ अभी तक हमारे पास नहीं आया। तो सिर्फ एक लोग ने थोड़ा कुछ बताया, सारे तो मैं एक तरफा सुना है ना। तो लड़का का साथ जेल में जाने के बाद पूरा चित्र हमारे पास आ जाएगा, तो हम नोटिंग करके उसके बाद हम पुलिस को लिखेंगे
कि आपने ऐसा ऐसा है। सर आप ये जो बोल रहे हैं कि ये दोनों केसेस में आप जिनसे बात हुआ है, इसके बाद भी जो पुलिस का इसमें जो हाथ है या नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन में आपको ये मानना नहीं है कि पुलिस का अभी तक जस्टिस इन फैमिलियों को मिल जाएगा, ये आपका मानना है? हाँ जरूर मिलेगा। देखिए पुलिस ने एक काम तो किया है, मानना ही पड़ेगा कि 3 लोगों को पहले सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो 3 ऑफिसर पुलिस उनको पकड़ के लेके आया, ये काम पुलिस ने किया है। लेकिन जो किया नहीं है, जिस थाना का अंदर में ये काम हुआ है, उसी थानेदार जो हेड है उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए था। नहीं, आप बोल ये रहे नहीं हैं किया, वो हम आज बोल दिया है, इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा पुलिस बताएगा हम। आप ये बोल रहे कि जब तक ये कमीशन इन्वॉल्व नहीं हुआ तब तक ये इनका न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं ये मिलेगा। तो बराबर है, अगर उनको उसी हिसाब से ढीला ढाला देखना चाहता था, और गरीब लोग है और वो विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग से है, तो उसको बोलने का कोई लोग नहीं है। अभी ये मामला में ये चिंता पुलिस को चला गया। सर एक बार इंग्लिश में, do you think that the police is trying to cover up this custody of death based on your first investigation? First, I have investigated this matter. Police said to me that there are a habitual. Police told me he is a habitual offender. Always they are this type of murder, thefting, they are crime based, crime angle. They are thinking they are crime angle. Just I tell him if he is crime angle, why not police arrest him? You arrest him and send to jail or court. Police ko to, this is not a right to murder. You calling murder? Murder. Vignesh, murder is a Vignesh, death is a murder. Are you trying to? एक मोटिव तो ये मर्डर पुलिस से पिटाने के बाद डेथ हो गया, तो क्या बोलेंगे आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसमें? तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में पूरा पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को जो अपना ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन पहले भी बताया, आज भी बोल रहा है जी, एक गरीब लड़का है, उसका मोटिव क्राइम का मोटिव मिला, तो पुलिस को लगा है कि कोई नहीं है, पिटाओ इनको, कोई नहीं है। Nobody will not come in favor of this. This police is hiding something. This police hiding something. Police hiding something. No, when police got to death, so the natural जो उनका जो लॉ है, उन्होंने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा। लेकिन हम लोगों को जो ऑब्जर्वेशन अभी उनको लगाया, उसमें पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। सर आपको क्या लगता है तमिलनाडु में SC/ST को बहुत अटैक लगता है, क्या चलता है आपको तमिलनाडु में बारे में? बहुत अटैक होता है SC/ST in Tamil Nadu. क्या उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तमिलनाडु में, ऐसा आपको लग रहा है क्या? तमिलनाडु में बहुत बार विजिट किया है, 2 साल के पहले भी आया है, लेकिन इसमें इधर में SC/ST के ऊपर समाज को जो बदलना चाहिए, जो सोच अभी भी बहुत नीचे है, समाज अभी बदलने का दृष्टि में देखना चाहिए। लोगों का मन में अभी भी SC/ST बारे में बहुत सारी गलत सोच है, ये सोच नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस का बहुत कमी है। मैं कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बार मैंने बोला था कि आप लोगों की अवेयरनेस चलाइए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन ढीला होने का कारण में, जैसे कुछ दिन पहले मैं वो वेलोर में गया था, अभी भी देखिए तमिलनाडु में SC का डेड बॉडी लेके जाने के लिए अलग से रास्ता है, वो रास्ता एबलिश करने बोल दिया था। गया तो 2-3 महीने पहले मैंने गया था, तो इसमें जो और एक जगह में चाय पीने का जगह में भी वो झमेला हुआ था, जानते हैं, उधर में मैंने गया। लेकिन बहुत सारे केस आए हैं। तो मेरे को कुछ दिन पहले, आपको पता है, तो मिनिस्टर ने वो क्या बताया था, आपको सबको पता है, एक मिनिस्टर तमिलनाडु गवर्नमेंट का, मैंने आश्चर्य जो केस में हम लोग लिया है, क्या नाम है मिनिस्टर का? तो एक गवर्नमेंट का एक मंत्री का, उनका सोच देखिए, वो आधिकारिक के साथ क्या व्यवहार किया, आप लोगों ने सबको देखा है। वो केस भी कमीशन में हम लोग नोटिस भेजा है, इमीडिएटली वो केस भी हम लोग एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा, उस केस भी हम लोग भेजा। तो एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर, अभी भी उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो शेड्यूल कास्ट का रक्षा करने के लिए जो मंत्रालय है, उसी मंत्रालय के जो SC को गाली दे रहा है, उनको मंत्रालय देखना चाहिए। ये
प्रोफेशन है ना, क्या बताइए। सर क्या आपने विघ्नेश के परिवार से मिले और उनकी क्या मांगे और उनके क्या विचार है? उसी परिवार को मिला है, अभी उनका जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गया। कॉम्पिटिशन ग्राउंड में केस लेके जाने के बाद जो कॉम्पिटिशन ग्राउंड में है वो अभी 4,25,000 तो इमीडिएट मिलेगा 4.25। अभी वो थोड़ा बाहर गया, नया कानून आया, अभी 6 लाख मिलेगा। Sir, we need an explanation in Tamil, sir. Could any of your officers can explain in Tamil? तमिल से बात करिए सर, मेरा तमिल से हमारा சார் வந்து இந்த 2 கேஸ பாக்குறதுக்காக டெல்லியில இருந்து இங்க வந்திருக்காங்க. டெல்லியில இருந்து வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டோடியல் டெத் கேஸ் கிட்ட அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லார்கிட்டும் ஒரு விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டாங்க. ஒரு விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சதுல அவருக்கு சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்குது. அதை புரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சுட்டு அவங்க கமிஷனரோடவும் மற்ற எல்லா போலீஸ் ஆபீசர்ஸோடும் பேசினாங்க. சார் வந்ததுனால அந்த கேஸை அட்ராசிட்டி இல்லாத கேஸை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துல சேர்க்கறதுக்கு உண்டான எல்லா நடவடிக்கையும் ஃபர்ஸ்ட்ல எடுத்தாச்சு. அதுக்கு அடுத்து அதை மறைக்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சர்டிபிகேட் இல்ல அப்படிங்கிற லைன்ல வச்சிருந்தாங்க. சார் அங்கிருந்து வரும்போதே சர்டிபிகேட் பாக்கெட்ல வச்சு கொண்டுட்டு வந்திருந்தாரு. அங்கிருந்து சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும், கொண்டுட்டு வந்திருந்தாரு. விக்னேஷோட பிரதர் வினோஷோட பிரதரோட சர்டிபிகேட் இருந்தது. அதனால இவரோட சர்டிபிகேட் இப்ப வாங்கிடுவாங்க. அதை வாங்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அட்ராசிட்டி ஆக்ட் போட்டுருவாங்க. அதை கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அட்ராசிட்டி ஆக்ட் போட்ட உடனே சார்ஜ் ஷீட் வந்து ஒரு 30 நாள் to 60 நாளுக்குள்ள கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அட்ராசிட்டி ஆக்ட் போட்ட உடனே தீர்வுத்தொகை 6 லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய டிபெண்டன்ட் யாருன்னு தெரியல, அவங்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய கடமை. இது வந்து ஆணையம் வந்ததுனால, சார் வந்ததுனால இது நடந்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஐஐடி கேஸ்லயும் அதே மாதிரி தான். ஒரு பொண்ணு சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு வந்து 1008 கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. ஒரு பொண்ணை என்னை கற்பழித்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னாலே அது உண்மையை எடுத்துக்கணும். அது வந்து அதாவது சமனாக இருக்கிறதுக்கு 99.9% இல்ல. அது ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டே நீங்க அட்ராசிட்டி ஆக்ட் இன்வோக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுல 2-3 பேர் பெயில் வாங்கியிருக்காங்க. அது பெயில் வாங்கின பின்னாடி கோர்ட் சப்ஜுடைஸ் ஆயிடுச்சு. அது வர்றதுக்குள்ள ஆணையம் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி மேட்டர் சப்மிட் பண்ணணும். அது கோர்ட் முடிவு பண்ணிட்டோம். சார் கூட விசி சார் கூட சுனில்குமார் டைரக்டர் சார் இன்சார்ஜ் சென்னைக்கு அவர் அடிஷனல் சார்ஜ் சார் கூட வந்திருக்காரு. இது ஒரு டீமா வந்ததுனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும். காவல்துறை மேல சந்தேகம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இல்ல, காவல்துறை மேல சந்தேகம் இருக்குது இல்லைங்கிறது இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் வரும்போதுதான் சரியாக படும். ஆவணங்கள் மறைக்கல, அது அவங்களுக்கு 100ல 1. எங்களுக்கு இதான் வேலை, இதுதான் வித்தியாசம். அவங்களுக்கு இதுல ஒரு 10 கேஸ் வருது, இதுல ஒரு கேஸ் போயிடும். நாங்க ஆணையம் அதுக்கல்ல. ஆணையம் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஒன்லி திஸ் பர்பஸ். அதனாலதான் ஆணையம் அந்த விஷயத்தை சீரியஸா எடுத்து பார்த்தது. அவங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலே அதை கொடுக்காதனால நம்ம எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்தோம். சார், மாநிலம் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அது வந்து சரியா கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லுங்க? மாநிலம் பிற்படுத்தல் சரியாக, அதாவது ஒருத்தர் பேசுனதை ஒரு ஆபீசரை பத்தி பேசுறவருக்கு, அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல போஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இந்த விக்னேஷோட மரணத்துல சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்றத சந்தேகம் இருக்கிறதுனால வந்திருக்கிறது. யார் மேல அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க இந்த விசாரணையில. அது வரும் இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிந்த பின்னால். அதுக்கிடையே நாங்களும் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம். அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சிபிஐ அது நீங்க என்ன விசாரணை அப்பொழுதுதான் ஆரம்பித்திருக்கிறது. அவர்கள் மறைக்கிறது அவங்களுடைய நேச்சர். மறைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆணையம் அப்படியே விட்டுக்கிட்டு இருக்காது. அவங்க அப்படியே மறைச்சிருந்தாலும் இப்ப மேட்டர் வெளியே வந்துச்சு. என்ன விஷயம் மறைத்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ, என்ன நீதி கிடைக்கணுமோ ஆணையம் அதற்காக எல்லா முயற்சிகளையும் எடுக்கும். ஆமா சார், சார் போற ஒரு 10-15 நாள்ல சப்மிட் பண்ணுவோம். கொடுத்த பின்னாடி நாங்க அதை வெரிஃபை பண்ணி சப்மிட் பண்ணுவோம்.